प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड स्टडी किया, फिर बाद में हमने स्टडी किया कि वही कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड को लेकर हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, in which we have also studied about productivity, how we increased in wheat, semi-dwarf varieties, rice में हमने semi-dwarf varieties देखा, उसके examples देखे, फिर बाद में हमने sugar cane का example देखा, then onwards we have seen the example of millets, right? अब हम बात करने वाले हैं कि second category कि plant breeding करना है for what purpose? For the purpose of disease resistance variety. Okay, now for making the disease resistant variety हम क्या करने वाले हैं? First of all, let us understand that why it is necessary to produce a disease resistance in the plant. Because as I have mentioned in the first point कि 20 to 30% loss जो होता है plant का yearly loss होता है, okay, and that loss is because of certain diseases which occurs in the plants. And these diseases are caused by mainly viruses, bacteria and fungi. तो plants के अंदर who cause the diseases? There are mainly three causative agents. Remember that they are viruses, they are bacteria and they are fungus. Okay. अब generally viruses जो bacteria करते हैं, viruses जो disease करते हैं, we call it as mosaic. Okay. तो virus causes a category of diseases and we call it as mosaic. Secondly, bacteria. तो बैक्टीरिया रॉट कर सकते हैं, ब्लाइट कर सकते हैं, कैंकर कर सकते हैं. ओके, सो इट कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस. एंड लास्ट इज फंगस. फंगस ब्लाइट कर सकता है, रस्ट कर सकता है, स्मट कर सकता है. तो रस्ट, स्मट, ब्लाइट आर द काइंड ऑफ डिसीजेस कॉज्ड बाय द फंगस. Anyways, certain examples are given over here. The viruses causes tobacco mosaic and the turnip mosaic, whereas the bacteria will cause certain diseases like black rot of crucifers. Further, fungus will cause brown rot of wheat, rust of wheat, red rot of sugarcane and late blight of potato. Yes, you need to remember the names. You have to cram रट्टा मार लो, क्योंकि इसका कोई ये नहीं. यू हैव टू रिमेम्बर कि ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये फंगस की डिसीज है और ये वायरस की डिसीज है. यू हैव टू क्रैप इट, देयर इज नो एस्केप टू दैट. ओके, नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं कि व्हेनेवर वी डू रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स, ओके, तो जो डिजीज रेजिस्टेंस एक कैरेक्टर है वो प्लांट्स के अंदर जेनेटिकली डिटरमाइंड है. कि लाइक सपोज इफ आई एम अ प्लांट and I am resistant to a particular disease, then that is my genetic makeup. Okay, तो genetically अगर किसी को वो resistance है तो वो disease resistance भी एक category होती है जो हमारा genetically determined factor है, वो कोई induced factor नहीं होता. ठीक है, so it is a genetically, it is not an environmental factor, it is not any other factor, it is all inside our genes. तो वैसे ही plants के अंदर भी genes के अंदर determined factor होता है disease resistance. Now what do you mean by disease resistance? So let me tell you here one more important point कि यहाँ पे जो ये factor है, okay, that is genetically determined, resistance to plants. फिर वो चाहे वो particular plant के अंदर हो या plant की वो कोई wild relatives में हो, कहीं भी हो, ये जो होता है that is a genetically determined characteristic feature. Further, if we talk about this benefits of disease resistance plants. What if a particular plant is a disease resistant plant? क्या benefit हो सकता है? So the benefit can be no dependency on bactericide and fungicide. First of all, I will explain you the word fungicide and bactericide. Fungicide वो chemicals है, fungicide, side मतलब होता है killer. Okay? तो fungicide वो chemical है जिसकी वजह से if you spray those chemicals on the land or a farm area, the bacteria are killed if it is bactericides. And if you spray a chemical, if the fungus is killed, it is known as fungicide. And ये जो bactericides होती है या fungicides होती है, ultimately हमारी body में जाके भी हमें harm कर सकती है. So if you spray such chemicals or such
व्हाट वी कैन से केमिकल्स जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर फंगस को किल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल प्लांट्स के अंदर भी जाएंगे। प्लांट्स अगर वो हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट, इट इज गोइंग टू इंटरफियर अवर मेटाबॉलिज्म, सो इट इज नेचुरली हार्मफुल। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज थिंग्स, राइट, हम उसे अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसा प्लांट होगा जो वो पर्टिकुलर डिसीज को रेजिस्टेंट होगा। सो वन कैन अवॉइड or there is no dependency on bactericides and fungicides. So that is the second point. Remember this, bactericides and fungicides पे जो dependency होती है, जो उसके ऊपर reliant हम होते हैं, that is been removed. The next is, of course, if the plant is what you can say disease resistance, तो उसकी productivity बढ़ेगी। ये जो 20 से 30% yearly loss है, उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। सो दिस टू आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ प्लांट विच इज डिजीज रेजिस्टेंस। आगे हम बात करें तो हमें क्या आइडिया होनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज। तो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि ये डिसीज कैसे हो रही है, मतलब दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में हमें पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो मच्छर क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मस्कीटो, दैट इज मस्कीटो इज दैट फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। ऑफ कोर्स फीमेल आर डेंजरस, राइट। सो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो से के बाइट करने से मलेरिया होता है। लेकिन कौन मलेरिया एग्जैक्टली करता कौन है? तो वी नो दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हुआ? हमें हुआ कैसे? मस्कीटो से। किया किसने? दैट इज द कॉजेटिव एजेंट, राइट। सो एंड फिर बाद में प्लांट्स में कैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स ब्राउन हो रहा है, प्लांट्स डाई हो रहा है, प्लांट्स विल्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट वी शुड स्टडी दैट थिंग्स इन डिटेल, देन वी कैन अंडरस्टैंड हाँ इससे ये डिसीज हुआ है ना। तो फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट द डिसीज एंड इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट, अगर हमें प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस बनाना है, like if you want to make a plant a disease resistance variety, what method we can opt for? So the first number of method that we can opt for is the conventional breeding method. ठीक है, वो same method जो हमने previous lecture में किया था। That is what, कि हमें collection of variability, different plants को collect करना है। सेकेंड, उसमें जर्म प्लाज्म इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हमें उसको पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, दैट इज इट शुड बी ऑफ प्योर लाइन्स, सेल्फ पोलिनेशन से। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस लेक्चर, भूल गए हो तो उसको रिफर कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा उसके 5 स्टेप है। फिर हमने किया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया। फिर वॉट एवर वी गॉट वॉज द रिकॉम्बिनेंट, उस रिकॉम्बिनेंट को हमने टेस्ट किया। फिर 5th पॉइंट हमने लिखा था कि टेस्टिंग रेफरेंस कल्टीवार के साथ उसको हमने रेफर किया। तो वो सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ओके, द सेम मेथड विच वी हैव स्टडी, आई जस्ट पुट अ पॉइंट, सेम 5 पॉइंट्स, सेम 5 स्टेप्स आर टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर। ओके, तो इस मेथड को करके there are certain plants which we have made are completely disease resistant. Okay, तो वो मेथड को अडॉप्ट किया। कौन सा? conventional breeding method, that is like that those 5 points which we have discussed, and we have got this 5 different varieties which are totally certain disease resistance. The first we'll talk about the plants, second is the variety, and next to what it is resistance to, like कौन सी disease को ये plants बिल्कुल ही रेजिस्टेंस हो गए हैं। रेजिस्टेंस मतलब एबिलिटी, एक इनर इम्यूनिटी जिसकी वजह से हमें या उस प्लांट को वो डिसीज ना हो, दैट इज व्हाट वी कॉल इट इज रेजिस्टेंट, वी कॉल इट इज इम्यून टू। ओके, सो फर्दर बात करते हैं प्लांट के अंदर जो पहली वैरायटी है, इन दैट वी विल सी वीट की जो वैरायटी जो वो पर्टिकुलर डिसीज को रेजिस्टेंस है, दैट इज हिमगिरी। रिमेंबर दैट, वीट हिमगिरी, and it is resistant to leaf and stripe rust and hilbund. Okay, ये डिसीज का नाम है। तो हमने जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड से किया है, that is made resistance to this. Now next is brassica. Brassica में आपको इजी रहेगा याद रखना। I have written T over here. Brassica का मतलब होता है राई। Okay, राई, that is mustard. Okay, तो it is actually the name is Karan Rai, and उसका जो
ब्रीडिंग से नाम पड़ा है, दैट इज नोन एज पूसा स्वर्णिम, राइट? सो यू कैन रिमेम्बर इट, आई डोंट नीड टू गिव यू एनी हिंट टू रिमेम्बर दिस, ऑलराइट? सो द नेम इज पूसा स्वर्णिम and the name is Karan Rai. So you can remember two words over here, Karan and Swarnim. Okay, and that is resistance to the white rust. Next we'll talk about the next, that is cauliflower. Cauliflower भी Brassica family को ही belong करता है, तो sometimes it can be written as Brassica. Okay, it is पूषा शुभ्रा, शुभ्रा मतलब white, याद रखना, और cauliflower आपको पता है पूरा white होता है, तो इट इज इजी टू रिमेम्बर, पूसा शुभ्रा, शुभ्रा मीन्स व्हाइट, और दूसरा जैसे कि वो स्नो का बॉल है, तो दैट इज अनदर नेम पूसा स्नोबॉल K1, तो इजी टू रिमेम्बर, ऐसे हिंट याद रखना, आपको याद हो जाएगा। इट इज रेजिस्टेंस टू, अभी व्हाइट है तो ब्लैक याद रखो, और उसका व्यूल भी क्या होता है, कर्ल होता है, ओके? तो इट इज रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्राइट, इट इज वेरी इजी। ब्रेसिका, that is Swarnim and Karan, that is what you, two names you need to remember, ये रट्टा मारने की चीज है, okay? And it is resistance to the white rust. The next is cauliflower, पूसा शुभ्रा and पूसा what is a snowball, वो स्नो के बॉल जैसा होता है, K1 याद रखना है, and black rot and curl blight को वो resistance है। The next is cowpea, हम बोलते हैं ना कि ये तो बेचारा बहुत गाय जैसा है, ओके? वी से दोस पीपल आर वेरी कूल, ठंडे दिमाग वाले, ओके? तो याद रखना है कोमल का नेचर बड़ा गाय जैसा है, ओके? सो उससे आपको याद रहेगा काउपी, पूसा कोमल, एंड इट इज रेजिस्टेंस टू विच डिसीज, बैक्टीरियल ब्लाइट, सो इट इज समथिंग यू जस्ट नीड टू मेक सम लिंक्स एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट। द नेक्स्ट इज चिली, चिली बहुत तीखा चीज होती है, राइट? यू नो दैट, and you can have सदाबहार तीखी चीज, right? So chili is Pusa सदाबहार and it is resistance to chili mosaic virus, tobacco mosaic virus and leaf curl. So this is something how you need to remember the names. I do remember it this way. Now choice is yours how you do it. Okay. So ये जो method हमने किया, this three, this is the 2, 3, 4 and 5. These are made resistance by which method? By conventional breeding method. Now let's move to the second method. अब conventional breeding का drawback क्या है? तो इसका drawback या disadvantage ये है कि हम सारे ही जो resistant genes है उसको identify नहीं कर सकते। We cannot identify all the resistance genes because हमने तो simply दो प्लांट को ब्रीड किया, हमें क्या पता इसमें कौन सा है और दूसरे में कौन सा। ये दिस इज ऑल प्लांट कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड जो है दैट इज ऑल लक बाय चांस, क्योंकि हमने उसमें ऑलरेडी पढ़ा है कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम कंज्यूमिंग इंटेडियस प्रोसेस, रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती। तो इसी वजह से सेकेंड हमने मेथड देखी दैट इज म्यूटेशनल मेथड, ओके? या तो फिर हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं, या तो फिर हम यू कैन कॉल इट एज म्यूटेशनल मेथड। अब इस म्यूटेशनल मेथड में क्या आएगा कि हमें पता है कि दिस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, रेजिस्टेंस कैसा होता है, इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो हम जीन्स में, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक मेथड। लेट्स से कि प्लांट्स का ये एक डीएनए है, ठीक है? ये प्लांट का डीएनए है, और इस डीएनए में यहां पे इस लोकेशन पे अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगी तो दिस प्लांट कैन बिकम अ डिजीज रेजिस्टेंस, ओके? तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू चेंज द बेस, या तो फिर उसके डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज करो कि जिससे उसको वो डिजीज रेजिस्टेंस मिले, या तो फिर अगर वो डिजीज से ससेप्टेबल है ऐसा कोई जीन है तो उसको जीन को रिमूव करो। मतलब एनी हाउ वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब चेंज इन डीएनए, रिमेंबर दैट। जो जेनेटिक होता है तो जीनोटाइप में चेंज करेंगे तो फिनोटाइपिकली चेंज आ ही जाएगा, ओके? तो जेनेटिक चेंजेस आर क्रिएटेड इन द बेस सीक्वेंस ताकि कोई नया कैरेक्टर डेवलप हो, और वो नया कैरेक्टर नॉन पेरेंटल होता है कि उसके पेरेंट में नहीं होता लेकिन उसमें आ जाता है। तो अगर ये प्लांट है, लेट्स से देयर इज अ प्लांट पी, ओके, और उसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई दैट इज फर्स्ट फीमेल जनरेशन F1, उसमें हमने म्यूटेशन कर दिया तो वो कुछ नया बना है, so that is not resembling to the previous generation, इसीलिए हमने उसे क्या कहा, recombinant। what do we call it as recombinant, okay?
म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस। अब म्यूटेशन कैसे कर सकते हैं? तो बेस एनालॉग्स का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास एडेनाइन, थाइमिन, प्यूरिन, मतलब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं, तो उसकी जगह पे हम उनके जैसे ही कोई स्ट्रक्चर को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, एनालॉग्स, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो वी कैन कॉल इट एज, यू कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इस केमिकल्स को, बेस एनालॉग्स को यूज करके वी कैन इंड्यूस म्यूटेशन। सो आफ्टर यूजिंग दिस केमिकल्स, जिसमें मैंने कहा आपको बेस एनालॉग्स यूज किए जाते हैं, दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं? सर्टेन रेज, रेडिएशंस यूज कर सकते हैं विच आर नोन एज फिजिकल फैक्टर्स, और रेडिएशंस का यूज करके भी वी कैन इंड्यूस म्यूटेशन, मतलब हम एक्स रेज या गामा रेज का यूज कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूटेशन हम किस चीज को यूज करते, किस म्यूटाजेंस मीन्स व्हाट? द एजेंट्स दैट कॉजेज म्यूटेशन को यूज करके वी कैन ब्रिंग और वी कैन इंड्यूस म्यूटेशन इन अ प्लांट। ओके, सो दैट इज वन इज बेस एनालॉग्स, दैट इज केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। किसी बुक में मस्टर्ड गैस करके भी लिखा है जिसको यूज करके हम इंड्यूस म्यूटेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इस म्यूटेटेड प्लांट्स को, जैसे कि एक प्लांट को मैंने म्यूट किया, ठीक है, म्यूटेशन इंड्यूस किया, लेट्स से दिस इज द प्लांट व्हिच आई हैव म्यूटेटेड। अब इसके साथ मुझे किसी नॉर्मल प्लांट को भी मैं ब्रीड करूंगी, अगर इसका व्हाट यू कैन से कन्वेंशनल ब्रीडिंग करवाऊंगी, तो आई विल गेट उसका जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें मुझे म्यूटेशन वाला कैरेक्टर मिल सकता है। Okay, so this is also the method. Now certain examples for mutational breeding are, the first is A, मूंग bean. मूंग जो होता है वो, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है फेजियोलस मूंगो। आप यहाँ पे याद रखना है कि इसी मेथड से, म्यूटेशनल ब्रीडिंग की मेथड से, इट हैज मेड रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू। ओके, तो जब ये म्यूटेशन किया गया और प्लांट हमें मिला, तो इट वाज फाउंड टू बी रेजिस्टेंस टू टू कंडीशन, दैट इज येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू कंडीशन मूंग में। द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर इज भिंडी। भिंडी इज ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी, राइट, और उसका साइंटिफिक नेम है एबेलमोशियस एस्कुलेंटस। यस, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, नो एस्केप। ओके, तो एबेलमोस एस्कुलेंटस जो है दैट इज रेजिस्टेंस प्लांट। अब इसका जो ये रेजिस्टेंस है वो कहां से मिला? इसका जर्म प्लाज्म, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है, व्हाट इज जर्म प्लाज्म, राइट, तो वो वाइल्ड स्पीशीज से कलेक्ट किया गया। दैट रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस इन एबेलमोशियस एस्कुलेंटस, वो साइंटिफिक नेम ऑफ भिंडी, राइट। और फिर अब ये जो रेजिस्टेंस भिंडी है, पहले जो बिना रेजिस्टेंस की थी, इट वाज नोन एज एबेलमोशियस एस्कुलेंटस, और रेजिस्टेंस हो गई तो भी वो एबेलमोशियस एस्कुलेंटस है, बट इट इज इन जनरल टर्म इट इज नोन एज परभणी क्रांति। रिमेंबर दिस नेम, द डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी, ओके, ऑफ भिंडी इज नोन एज परभणी क्रांति, and it is resistant to what virus? To yellow mosaic virus. Further, हम जब भी ये प्लांट ब्रीडिंग मेथड करते हैं तो एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है? आई हैव रिटन ओवर हियर दैट द डिजीज रेजिस्टेंस शुड बिलोंग टू सेम स्पीशीज। जैसे कि अगर मैं राइस को ब्रीड करना चाहती हूँ तो वो डिजीज रेजिस्टेंस दूसरे राइस में ही होना चाहिए, फिर वो वीट का नहीं होना चाहिए। So the first condition is what? It should be belonging to the same species. क्योंकि जीनोम चेंज नहीं होना चाहिए, it should be the same. फिर चाहे वो उसकी डिस्टेंट रिलेटिव स्पीशीज में हो या फिर वाइल्ड रिलेटिव स्पीशीज में हो, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज में हो, किसी भी वेराइटी में हो, लेकिन स्पीशीज एक ही होनी चाहिए, उसको हम ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक प्लांट को मैंने रेजिस्टेंस कर लिया, तो उसको ही एज अ डोनर प्लांट या तो फिर एज अ मेन प्लांट, एज अ प्लांट पेरेंट प्लांट में सिलेक्ट करूंगी एंड आई विल ब्रीड इट विद द अदर सेम स्पीशीज प्लांट। लेट्स से आई हैव म्यूटेटेड वन बासमती राइस, इट इज रेजिस्टेंस टू सम वायरस, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे रिजल्ट मिल गया है, अब मैं बाकी के जो बासमती को अगर ब्रीड करना चाहूंगी तो मैं वो म्यूटेटेड प्लांट को साथ ही ब्रीड करूंगी। ओके, सो वो कैसे कर सकते हैं? सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट यू कैन से दैट इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ओके, वो मेथड हम अप्लाई करके यहाँ पे पहले तो सिलेक्ट करना है पेरेंट्स को, फिर सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो इस तरीके से हम इस प्लांट ब्रीडिंग मेथड को आगे ले जा सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, व्हिच is the second point, you can say,
प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी। इसमें आपको मेथड याद रखनी है, ठीक है। तो सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है, और एक भी आ सकता है कि टेक्स्ट बुक में दिया है, एंड दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि हम जीन्स में चेंज कर रहे हैं ना, तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, ठीक है। सो आपको यहाँ पे याद रखने ही, यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अगर म्यूटेशन किया तो व्हाट आर द कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड का ये एग्जांपल्स होंगे, द सेकंड मेथड इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग, और उसके ये एग्जांपल होंगे। रिमेंबर, म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज डन only for producing a disease resistance variety. So this was all about today's lecture.